Hello students, here we are again with the topic that is capacitance, and today in capacitance we are going to learn about two topics. Number one is that is energy density of an electric field, and the second one will be the redistribution of electric charges. First of all, I just want to tell you that what we had learned in capacitance so far. The most important thing that we had learned is the principle of capacitance. Principle of capacitance. Second, capacitance depends on what factors? What factors? Number third is the most important, how to find the capacitance of parallel plate capacitor. That was C is equal to epsilon naught A by D. Fourth thing which we had studied in this is this formula is very important, beta, and we have to remember this till whole life. One more important formula which we had studied is Q is equal to CV, and whenever the capacitor or capacitance comes in my mind, I have to remember this formula that Q is equal to CV must be applied everywhere. सबसे पहले मेरे दिमाग में Q is equal to क्या आना चाहिए? CV. After that we have learned about combination of capacitors. That is series. The formula for series was 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3, and for parallel it is C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 and so on. The last but not least, that is energy stored in capacitor. And it is represented by U, and U was equal to half CV square, half Q square by C, and half QV. These were the three formulas. अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो कहीं पर भी इनमें से कोई भी फॉर्मूला उठकर कहीं पर भी प्लेस हो सकता है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है हमेशा ही. So our today's first topic is that is energy density of an electric field. What do we mean by energy density? First of all, you must now know what do we mean by energy density. Energy density means energy stored per unit volume is energy density. Density वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा बेटा. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से. अब वी आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कौन से वॉल्यूम में देखने को मिलती है बेटा? तो अगर मैं बात करूं, एक कैपेसिटर अगर मैंने लिया है तो एक साइड में मुझे यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है और दूसरी तरफ मुझे क्या मिलता है बेटा? नेगेटिव. और इसी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इनके बीच में मुझे क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है. क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड. A is the area of the plate, D is the separation between the plates. ठीक. So I have to find the density of this energy due to this electric field. There is the due to this electric field there is the energy between two plates, and we have to find that energy. We have to find that energy per unit volume. सो बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता चल ही गया बेटा. अब यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
एनर्जी का तो फॉर्मूला कैपेसिटर है तो हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम विल बी एरिया, this is a area into d, d is the volume, right? So a into d, I have to find energy density, and energy density will be equal to capital U upon volume. Capital U is half c v square upon ad. Now what I can write is E is equal to, I have learned one more formula, that is E is equal to V by D, if I am not wrong. So V is equal to क्या हो जाना है बेटा, ED. So I can replace this ED over here. So U will be equal to half C ED का whole square upon AD. इसे लिख सकते हैं ED का whole square upon AD, right? Now C is equal to क्या होता है, C is equal to epsilon naught A by D होता है बेटा. तो half epsilon naught A by D into E square D square upon AD. So A will get cancel out, D से D cancel out, तो U जो आया वो मेरे पास क्या आ गया, half epsilon naught E square. So this will be the formula for energy density of an electric field. So what is the energy density of an electric field? How much energy is stored per unit volume between the plates of the capacitor? So this is the very important formula, और ये बोर्ड में कई बार आया भी है. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक. इसको कई बार एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होता है, हालांकि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, राइट. समझ में आ गया. नेक्स्ट अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड. दिस इज आवर सेकंड टॉपिक. सी बेटा, सपोज देयर आर टू कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है. अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है, ठीक. तो बिफोर कनेक्शन भाई इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो सपोज Q1, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका पोटेंशियल V1. इन द सेम वे इसके ऊपर चार्ज Q2, C2 एंड V2. नाउ आफ्टर कनेक्शन, अब हमने क्या काम किया, कनेक्ट कर दिया. अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बेटा, आफ्टर कनेक्शन क्या क्या होगा, सबसे पहले हम वो लिखते हैं. चार्जेस will get redistributed, distributed, that is new charge will appear, new charges will appear on both capacitors. कब तक चार्ज फ्लो करेंगे, चार्जेस will flow till the potential becomes same. तब तक फ्लो करेंगे भैया. अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो ऑब्वियसली बात है चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमेशा क्या होता है बेटा, चार्ज का फ्लो होता है. तो आफ्टर कनेक्शन अगर मैं देखूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. तो यहाँ पर जो भी चार्ज अपीयर होगा वो अब Q1 डैश मान ले बेटा,
कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, वो तो C1 ही रहेगा, पोटेंशियल V हो गया होगा, V मतलब कॉमन पोटेंशियल हो गया होगा, Q2 डैश C2 रहेगा और ये कॉमन पोटेंशियल। तो अब चार्जेस का फ्लो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, चार्जेस का पोटेंशियल आपको यहाँ पर देखने को अब नहीं मिल रहा है। तो अगर मुझसे कोई इसके ऊपर अभी इनिशियली चार्ज, अब देखना है यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको समझ में आई। तो चार्ज यहाँ पर कितना होगा देखना आप, तो यहाँ पर अगर मैं Q1 लिखने की कोशिश करूँगा तो दिस विल बी C1V1, और यहाँ पर अगर मैं Q2 लिखने की कोशिश करूँगा तो C2V2, ऐसा ही होगा। यहाँ पर Q1 डैश कितना हो जाएगा C1V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा बेटा C2V, ऐसे ही मिलेगा मुझे देखने को। तो अगर मुझसे कोई सबसे पहला सवाल करे, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ द चार्जेस will be distributed after कनेक्शन, कनेक्शन के बाद चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर मैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश लिखूं तो ये क्या हो जाएगा C1V अपॉन C2V, ऐसे ही हो जाएगा। V से V क्या हो गया बेटा कैंसिल, मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2. So charges will get distributed according to their capacitance, according to their capacitance. तो ऑब्वियस सी बात है जिसका कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा उसके ऊपर उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा C होगा, क्योंकि V तो क्या हो गया है यहाँ पर V हो गया है कांस्टेंट। तो कनेक्शन के बाद पोटेंशियल हो जाता है कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होने की वजह से किसके पास ज़्यादा चार्ज किसके पास कम चार्ज, तो वो रेशियो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2. Now I have to find the common potential, इस V की वैल्यू कितनी होगी। Now for common potential, कॉमन पोटेंशियल में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस बिफोर connection must be equal to charges आफ्टर कनेक्शन। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा देखना बेटा C1V1 प्लस C2V2 एंड दिस विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V, क्योंकि चार्ज तो कहीं पर भी, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये क्या हुए होंगे भैया चार्ज तो Q1 प्लस Q2, यानी कि मैं यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता था कि Q1 प्लस Q2। अब यही चार्ज तो है जो Q1 डैश कनेक्शन की वजह से Q2 डैश डिफरेंट तरीके के चार्जेस में अपीयर होने लगा, मैंने इन सब की वैल्यू लिख दी। तो यहाँ से मुझे V की वैल्यू कितनी मिल गई, V की वैल्यू मिली मुझे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. So this is the formula to find the common potential after connection. क्योंकि सिंपल सी बात, जब तक कैपेसिटर्स को आपने कनेक्ट नहीं किया है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, कनेक्ट कर देंगे तो चार्जेस का फ्लो होते रहेगा, कब तक फ्लो होते रहेगा जब तक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। कॉमन पोटेंशियल आ गया तो वो कॉमन पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब क्या हुआ बेटा, ड्यू टू दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन distribution there will be the loss of energy,
एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा भैया। कि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। और वो लॉस किस फॉर्म में होगा, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, साउंड लाइट हीट के फॉर्म में हो सकता है। तो दीज आर दी several ways by which we will face the loss of energy why when the redistribution takes place। तो हमें वही पता करना है कितना लॉस हुआ। तो वो लॉस अगर मुझे पता करना है तो इनिशियल कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, टू आइडेंटिफाई लॉस एंड एनर्जी, ये क्या होना चाहिए, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल एनर्जी बड़ी होगी तभी हमें लॉस देखने को मिला। अब इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वन वी वन स्क्वायर ये पहले वाले की एनर्जी, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर ये दूसरे वाले की एनर्जी। फाइनली एनर्जी क्या हो जाएगी, यू फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ सी वन, पोटेंशियल सेम हो गया था कनेक्शन के बाद, हाफ सी टू वी स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, after connection, and this is the energy before connection, before connection। यही तो हुआ, ये इनिशियली ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी, फाइनली पोटेंशियल सेम हो गया, कैपेसिटेंस तो क्या रहा, वही रहा, तो ये दोनों ऐड हो गए। अब मुझे ये दोनों एनर्जी इसको क्या कर देना बेटा, माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे देखिएगा, डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा एनर्जी को, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए, हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर। So this will be equal to half c1 v1 square plus half c2 v2 square। और देखो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है पता है, हाफ c1 प्लस c2, दिस इज v स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू रख सकते हैं, रखिएगा जरा, तो हाफ c1 v1 स्क्वायर हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ c1 प्लस c2, और ये वैल्यू क्या है, c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2, ऐसी मिलेगी आपको ये वैल्यू। ठीक, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखना यहाँ पर ये है इक्वल टू का साइन। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम के अलावा भी तो स्क्वायर भी तो करना था इसका। वेरी गुड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, इस पूरी टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक c1 प्लस c2 से एक c1 c2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि c1 प्लस c2 रह जाएगा बिना स्क्वायर के। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया c1 प्लस c2 से, माइनस हाफ, ये देखो यहाँ पर क्या बचा, c1 v1 प्लस c2 v2 और इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर दिया गया इसको, c1 प्लस c2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो 1 अपॉन c1 प्लस c2 कॉमन ले लिया, हाफ हाफ हाफ, यानी कि हाफ भी कॉमन ले लिया जाए। वेरी गुड। सो दिस विल बी c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c1 c2 v1 स्क्वायर, c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक, माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2c1 c2 v1 v2, ऐसे लिखेंगे। तो ये देखो ये वाली टर्म इससे कट गई,
ये वाली टर्म इससे कट गई, इससे इससे कट गई। अब देखो यहाँ पर C1 C2 कॉमन आ जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, ऐसे ही देखने को मिलेगा। और ऊपर V1 और ये V2, यानी कि ये हो गया देखो V1 स्क्वायर V2 square minus 2 V1 V2. So this will be C1 C2 upon 2 C1 plus C2, 2 C1 plus C2, ये क्या हो जाएगा V1 minus V2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी एनर्जी लॉस। क्या आ गई बेटा ये एनर्जी लॉस। तो ये दो आपके छोटे से कंसेप्ट्स हैं बेटा, इन दोनों कंसेप्ट्स का ध्यान रखेंगे। अब ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें आपको टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। एक वैल्यू गिवन है आपको देखो बेटा C4 की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? C4 कि एनर्जी स्टोर्ड इन C4। इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो दे रखी है आपको 27 जूल। जब इसमें एनर्जी आपको 27 जूल दे रखी है तो आपसे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है, यानी कि इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है। इन सारी एनर्जीज को कैलकुलेट करके उनको ऐड करना है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा देखना। सबसे पहले अगर मैं U4 मुझे गिवन है, U4 इज इक्वल टू 27 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ C4V स्क्वायर, ऐसे ही लिख पाऊंगा मैं इसको। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ से मैं V निकाल सकता हूँ कि इस C4 के क्रॉस V क्या होगा। कैसे? 27 इज इक्वल टू हाफ C4 कितना है? C4 is 6 into 10 to the power minus 6 into V square and this is equal to कितना है? 27 है। This is equal to 27। तो ये हो गया 3 9 से 27, यानी कि V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 9 into 10 to the power 6 आ गया। तो V कितना आ गया बेटा? V आ गया 3 into 10 to the power 3 volts। मतलब मुझे इसके अक्रॉस V पता चल गया। यही V इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि तीनों किसमें पैरेलल में। तो C2 C3 C4 are in parallel, so potential remains same, और अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो सेम और वो कितना 3 into 10 to the power 3। अब देखो, तो अब अगर मुझे U2 निकालना हो तो हाफ CV स्क्वायर हाफ C2 कितना है? C2 is 2 into 10 to the power minus 6। V स्क्वायर ही रख दें सीधे सीधे, तो 9 into 10 to the power 6 कैंसिल हो गया। कितनी जूल आ गई? 9 जूल। U3 भी निकाल लेंगे ऐसे ही, हाफ C3V स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ C3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3 into 10 to the power minus 6 इंटू V स्क्वायर, तो वही है 9 into 10 to the power 6 कैंसिल हो गया। 9 3 जा 27, 27/2 27/2 यानी कि ये हो गया 13.5 जूल। तो U4 आ गया, U2 आ गया, U3। अब U1 की टेंशन हो गई। अच्छा, U1 तो इन सब के साथ U1 तो सीरीज में है, सीरीज में क्या चीज सेम? चार्ज। तो मैं इन तीनों के क्रॉस चार्ज निकाल लूं तो इन तीनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना होगा? C इक्विवेलेंट ऑफ C2 C3 एंड C4 कितना मिलेगा? C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 11 माइक्रोफैराड। 6 3 9 10 11 माइक्रोफैराड। V मुझे पता है, V is 3 into 10 to the power 3।
तो Q पता चल जाएगा मुझे, C इक्वलेंट इंटू V, यानी कि 11 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 3 10 टू द पावर 3, 11 3 is 33, 33 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, ये मुझे चार्ज मिल गया। और एक बार अगर मुझे चार्ज मिल गया Q, so this charge Q will appear at C1, so charge at C1 is 33 into 10 to the power -3 कूलम। एनर्जी 1, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C, यानी हाफ Q स्क्वायर कितना है 33 इंटू 33 टू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन C कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -6। ये देखो कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया बेटा 16.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कर लेते हैं, 3 5 जो 15, 1 करी 3 6 जा 18 19, 3 1 जा 3 5 9 3 9 10 14 14 9 10 11 13 5 9 और 14 10 13 13 434.5 434.5। कुछ गलती हो गई क्या? 3 5 जा 15, 1 करी 3 6 जा 18 19, 3 1 जा 3 4, देखा 4। अब देखो एक रेजर भी नहीं आ रही, चलो ये आ जाएगा, देखो बेटा 3 5 से 15, 3 6 18 19, 3 1 से 3 4 5 9 4 9 14 10 14 5 44.5 जूल। तो U1 की एनर्जी आ गई 544.5 जूल, U2 की एनर्जी आ गई 9 जूल, U3 की एनर्जी आ गई U3 की एनर्जी आ गई 13.5 जूल, 13.5 जूल, एंड U4 तो गिवन ही था, U4 was 27.0 जूल, ऐड कर लेंगे 10 1 कैरी 8 14 15 16 17 17 एंड 7 कितना हो गया बेटा 24 2 6 6 7 8 9 9 594 जूल, 594 जूल विल बी। क्लियर हो गई बेटा बात? तो इस तरीके से आप एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन देखो, इसमें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का भी कंसेप्ट है, फिर एनर्जी का भी फॉर्मूला है, फिर उसका पैरेलल सीरीज भी चेक करना है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन, एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रिलेटेड। तो एक कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड का, ठीक साहब, ये एक कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड का, इसका पोटेंशियल दे दिया आपको 150 वोल्ट, ठीक है, its potential fall to 90 volt when another capacitance is connected to it। जब कोई दूसरा कैपेसिटेंस C मान लेते हैं इस कनेक्टेड, पोटेंशियल 0 क्योंकि कोई पोटेंशियल दिया नहीं, जब इसके साथ इसको कनेक्ट किया गया तो
का पोटेंशियल 90 वोल्ट हो गया, तो ऑब्वियसली इसका भी पोटेंशियल 90 वोल्ट हो गया होगा, क्योंकि कनेक्शन के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या कब तक चार्ज का फ्लो होता है, नया जो पोटेंशियल अपीयर होता है वो तभी अपीयर होगा जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसने आपसे पूछ लिया कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर निकालने के लिए तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है। V कितना बेटा 90, C1 कितना दिया हुआ है आपको 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इनिशियल पोटेंशियल इज 150, C2 आपको निकालना है, तो इसका पोटेंशियल है 0, C1 कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस C2 आपको निकालना है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 90 6 इंटू 10⁻�6 प्लस C2 इज इक्वल टू 6 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6, ऐसे ही लिख पाएंगे। तो 90 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 90 इंटू C2 इज इक्वल टू 6 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6। तो 90 इंटू C2 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करो तो देखो कितना जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻, इसको इधर लेकर जा रहा हूँ मैं, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 तो आ गया कॉमन, 150 में से कितना गया 90, C2 is equal to 6 into 10⁻⁻6 into 60 डिवाइड बाई 90, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, सही कर रहा हूँ मैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी कोई। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 2 वेरी गुड, यानी कि 4 माइक्रोफराड, ये आ गई वैल्यू C2 की। और वो दूसरी समझ में आया ये कंसेप्ट, यहाँ पर आपको कैसे पता चला सर इसका V0 है, बिकॉज नथिंग इज गिवन अबाउट दी सेकंड कैपेसिटर के उसका पोटेंशियल कितना था कितना नहीं था। तो जब कभी भी हमें किसी भी कैपेसिटर के पोटेंशियल के बारे में कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो हम उसका पोटेंशियल 0 मानेंगे। ये आपको कैसे पता चला कि इसका भी पोटेंशियल 90 और इसका भी पोटेंशियल 90, क्योंकि उसने बोला बेटा इट्स पोटेंशियल फॉल टू 90 वोल्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड, और कनेक्टेड जब भी होगा तो कनेक्शन होने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, एक कॉमन पोटेंशियल पर पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमें निकालना है एनर्जी लॉस्ट, तो या तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला याद रखें, तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, या दूसरा तरीका क्या है बेटा कि आप इनिशियल एनर्जी निकालो, बिल्कुल बेसिक स्टेप से, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। देखो इससे भी बहुत आसान पड़ेगा, हाफ C1 कितना है, C1 है 6, यानी कि हो गया 6 इंटू 10⁻⁻6, इसका पोटेंशियल कितना था 150 था शायद, इनिशियल यही तो है V1 की वैल्यू, V1 इज 150 इंटू 150, और V2 यानी कि हाफ C2 आपने निकाल ही लिया 4 इंटू 10⁻⁻6, लेकिन इसका पोटेंशियल था 0, तो U इनिशियल कितना आ गया हाफ, मतलब इसको काट तो 3 आ गया, तो 150 150 225 225 3 ज़ा, अभी मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 150 इंटू 150, क्या पता कहीं आगे कुछ कट रहा हो, 10⁻⁻6, ये आ गई U इनिशियल। अब निकाल लो U फाइनल, तो U फाइनल कितना हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर, हाफ C1 कितना है 6 प्लस 4, और ये सब माइक्रो में था 90 इंटू 90, ऐसे ही लिख पाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी हाफ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 90 इंटू 90, तो ये 5 हो गया, यानी कि 5 इंटू 90 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका हो गया U फाइनल। अब 150 इंटू 150 225 इंटू 3, तो इसको बस अब माइनस कर देना है आपको, तो U फाइनल U इनिशियल माइनस U फाइनल,
यही आपको क्या दे देगा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो यू इनिशियल 150 इंटू 150 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 5 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻6। बहुत सारी चीज़ें कॉमन आती है दिख रही हैं बेटा, जैसे कि जो भी आप सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 तो आ ही रहा है कॉमन, इंटू 10 ये दोनों से 10 कॉमन आ गया। और मैं चाहूँ तो 3 भी कॉमन ले सकता हूँ, 5 भी कॉमन ले, बहुत सारी चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलेगा, एंड दैट एनर्जी विल बी पॉइंट, मतलब इसको आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.027 जूल मिल जाएगी एनर्जी, इतनी एनर्जी लॉस हो गई। तो इस तरीके के बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल, आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन, एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज आर सच क्वेश्चंस जो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर मिलेंगे। आई होप ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए हैं। बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।